Good morning, good morning, good morning. Namaskar, namaskar, namaskar. Welcome back, all of my friends, to In This Quiz Games. This games is very important for your coming examination and the label of the question starting from UPSC and come down to the CGL level. So let's start the game of fantastic quiz. First question about Buds flowing army. Ant is an example for which of the following? Buds following army ants is an example for which of the following types symbiotic relationship with organism between organism? Let's see answer. Okay, C is the right answer. Communalism, commensalism is the right answer. Let's see about it. Commensalism is a type of symbiotic relationship between organism in which one organism benefits without harming the other. Many birds form a commensal, a communalism relationship with some of the species of ants like the army ants. A greater number of army ants trail on the forest floor and while moving stir up many insects lying in their path. The birds follow these army ants and eat up the insect that try to escape from them. The birds benefit by catching their prey easily while army ants are totally unaffected. Next question on screen. Mangroves, saltwater crocodile, Indian python, wild pigs and rhesus monkey are the found in which of the following park, national park? It's a Bhitarkanika, it's a Sundarban, it's a Nagarhole, it's a Periyar. Okay, this is Bhitarkanika National Park, in which everything's explained. Flora and fauna of the Bhitarkanika National Park. Flora, that is mangrove, cassurians and grasses like the indigo bush. Fauna, park is home to the saltwater crocodile, Indian python, black ibis, wild boar, rhesus monkey, cheetal, cobra, monitor lizard, olive ridley turtles nest on the Gahirmatha and other by nearby beaches. Bhitarkanika was one of the largest population of the saltwater crocodile in India. Which of the following species are naturally found in India? It's a red-headed vulture, flying squirrel, koala and golden langur. Options here. Okay, right answer 1, 2, 3, 4 all are found in India. Red-headed vulture, also known as Asian king vulture, Indian black vulture, a Pondicherry vulture is an old world vulture mainly found in Indian subcontinent with the small disjunct population of some parts of the Southeast Asia. Flying squirrel, any of more than 50 species of gliding squirrel. 3 species are the Northern American, 2 live in Northern Eurasia and all other are found in the temperate and tropical forest of Indian and other parts of Asia. Golden langur, also known as simply golden langur, in old world monkey found in a small region of western Assam, India and in the neighboring foothills of Black Mountain of Bhutan. The koala is arboreal herbivorous marsupial native to Australia. In dry areas of low rainfall, thorny shrubs and scrubs grow. How does such plant adapt to the low level of moisture? Such plants generally have shallow roots to utilize water more efficiently. Some plants' leaves have thorny and waxy surface to reduce loss of moisture by transpiration. Which of the following above statement is are correct? Okay,
A is the right answer. So B is the right answer. Sorry for it. They have adapted to desert condition by developing extremely long root system to draw water from deep underground near the water level. Mosquitoes' roots are considered the longest of any desert plant and have been recorded as long as 80 feet. Mosquites. Some have succulent leaves to store moisture. Some have thorny leaves to reduce water loss by transpiration. Waxy leaves protect soil moisture benches beneath the coating. Question number 5 on screen. Consider the following about the global soil biodiversity atlas. It is prepared by the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). India is among the countries whose soil biodiversity faces the highest level of risk. Soil biodiversity encompasses the presence of microorganisms, microfauna and macrofauna. I think you got the answer because you know one statement is incorrect, so you can easily eliminate it and reach the answer. 2 and 3 is the right answer. India's soil biodiversity is a grave peril according to the Global Soil Biodiversity Atlas prepared by the World Wide Fund for Nature, not by the UNFCCC. WWF's risk index for the globe, indicating threats from the loss of above ground diversity, pollution and the nutrition overloading, overgrazing, intensive agriculture, fire, soil erosion and desertification and the climate change, so that India among the countries whose soil biodiversity faces the highest level of the risk. Soil biodiversity encompasses the presence of microorganism, microfauna, tardigrades, example, and macrofauna like ants, termites, earthworms, so on. Consider the next question regarding the powers of the Lok Sabha Speaker. Speaker prorogues ongoing session of Lok Sabha. Speaker approves the all bills before it is sent to the President assent. Speaker heads the appointments committee of the cabinet and the appointments committee of Lok Sabha. Okay, think about it. I think you got the answer or not got the answer. You know, nothing is the power of, I think D is the right answer. इनमें से कोई पावर लोकसभा के स्पीकर के पास नहीं है. प्रेसिडेंट प्रोगोज द सेशन, जैसा कि आप जानते हैं प्रोगेशन सेशन को कौन करता है? प्रेसिडेंट, मतलब इंड्स करते हैं. स्पीकर कैन ओनली एडजर्न इट फॉर सम टाइम. स्पीकर ओनली नोटिफाइज वेदर ए बिल इज़ मनी बिल और नॉट, ना कि सभी का सभी बिल को सर्टिफाइड करते हैं. PM heads the appointment committee of cabinet. There is no appointment committee in Lok Sabha. Appointment committee नहीं होता लोकसभा का. Second question, with the reference to the parliamentary standing committee, consider the following statement. Standing committee not only supervise the work of the various departments but also their budget. Public account committee is an example of a standing committee. Members of the standing committee are selected from both the house. Standing committee are permanent in nature. Standing committee are means of the parliamentary control over the executive. Okay, करेक्ट आंसर फाइव करना आपको. इसके ऑप्शंस आपके यहाँ हैं. देखिए आप इसमें थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको थोड़ा सा हिंट्स मिल सकता है. 3 स्टेटमेंट गलत है. 3 जहाँ 3 है कट जाइए. अब 1, 4, 5 तो दोनों में है, दूसरे पर विचार करिए थोड़ा सा. पब्लिक अकाउंट कमेटी इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफकोर्स, तो इसका सही जवाब हो गया 1, 2, 4, 5. इससे सी इज द राइट आंसर. लेट्स सी समथिंग अबाउट इट. Standing committee not only supervise the work of the various departments but also their budget, their expenditure and bills that come up in the house relating to the department. It is a permanent and regular committee which is constituted from time to time according to the provisions of the Act of the Parliament or the rules of the procedure, conduct and business.
द वर्क डन बाय द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ओनली वॉल्यूमिनियस, मतलब ये बहुत, मतलब आपको पता होगा कि पार्लियामेंट का काम कोई छोटा काम नहीं है, बहुत ढेर सारे काम होते हैं, कम्प्लेक्स नेचर का होता है, इतना समय भी नहीं होता है कि सभी काम को, सभी विधेयक को, सभी बिलों पर बेहतर चर्चा हो सके। इसलिए क्या होता है, अच्छी डिस्कस करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए गुड डील ऑफ इट्स वर्क कैरिड आउट इन दिस पार्लियामेंट्री कमेटी। ये पार्लियामेंट्री कमेटी इन सारे भारों को अपने कंधे पर ले लेती है। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। आपको पता हो दो प्रकार का कमेटी होता है, एक स्टैंडिंग कमेटी जिसको हम लोग अस्थायी कमेटी बोलते हैं, दूसरा तदर्थ कमेटी और एडहॉक कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक एग्जाम्पल है स्टैंडिंग कमेटी का, जिसके सदस्यों का चुनाव हर एक साल में सेलेक्टेड किया जाता है बोथ हाउसेस के द्वारा। लेकिन आपको ध्यान रहेगा, एस्टीमेट कमेटी जो होता है वो पूरी के पूरी, इसके जो 30 मेंबर होते हैं, प्राक्कलन समिति जिसको बोला जाता है, वो पूरे के पूरे 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं। इसलिए आप ये बिल्कुल मत कहिए कि स्टैंडिंग कमेटी की जो 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति है, उसके बाद आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी है, और एक कमेटी है, आई थिंक फॉरगॉटन अबाउट इट, बट डोंट वरी, बस इतना याद रखिएगा, स्टैंडिंग कमेटी के सभी के सदस्य लोकसभा से नहीं आते हैं, केवल लोकसभा से आते हैं, ये भी गलत है, केवल राज्यसभा से आते हैं, ये भी गलत है, हमेशा लोकसभा राज्यसभा से आते हैं, ये भी गलत है। स्थिति पे डिपेंड करता है कि बस ध्यान रखिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी में ऐसा लोकसभा राज्यसभा दोनों से आते हैं, लेकिन एस्टीमेट कमेटी में नहीं, एस्टीमेट में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ताकि वो ओवरऑल वो सारे फंक्शन कर पाए, ताकि वो राज्य के और केंद्र के बीच एक सेतु का काम कर पाए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन, कौन सा काम नहीं है गवर्नर का? इंश्योर कराना स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, सरकार, राज्य सरकार को मतलब इस दायरे में इंश्योर कराना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के तहत काम करे। इंश्योरिंग द लॉ मेड बाय द स्टेट legislature or within the constitution framework, ensuring the state government do not disregard the constitutional direction given by the central government, none of the above. I think this is simple question. I think I would give the answer, D is the right answer. None of the above, सारे के सारे काम गवर्नर के हैं। If a state government does not work within the constitutional framework, or if the state government disregard the central direction, या तो राज्य अगर संविधान के नियमों के अनुसार काम ना कर रहा हो या सेंटर के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार नहीं चल रहा हो, तो गवर्नर कैन रिकमेंड टू द सेंटर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स इन द स्टेट। राष्ट्रपति शासन के लिए वो बात कर सकते हैं इस पर। गवर्नर ऑल्सो रिजर्व द स्टेट बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट विच सीम अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सीम्स टू बी ब्रीच द सेंट्रल लॉज, और सीम्स टू बी इंडेंजर्ड द पोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट। ये 3 ऐसी केसेस है, 3 ऐसी स्थिति है जिस पर राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मोशन ऑफ थैंक्स। धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार कीजिए। अमेंडमेंट्स टू द मोशन ऑफ थैंक्स कैन बी मूव्ड इन बोथ द हाउसेस इन सच फॉर्म एज मे बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट बाय द स्पीकर। क्या ये स्पीकर के द्वारा निर्धारित होता है? चलिए, द मोशन ऑफ थैंक्स इज डीम्ड टू बी ए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस को आप समझ लीजिए कि एक अविश्वास प्रस्ताव की तरह ट्रीट किया था। क्या सही है? सोचिए अबाउट इट, समय शुरू हो चुका है। देखिए, ये स्पीकर के द्वारा नहीं होता, इसलिए एक तो काट दीजिए और 2 में सही चला जाइए। 2 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। मोशन थैंक्स, नोटिसेस ऑफ अमेंडमेंट टू मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस, ना कि स्पीकर के एड्रेस पे, कैन बी टेबल्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज़ डिलीवर्ड हिज एड्रेस। अमेंडमेंट्स may refer to matter contained in the address as well as to the matters in the opinion of the member the addresses has failed to the mention. Amendments can be moved to the motion of thanks in such a form as may be considered appropriate by the speaker in the Lok Sabha and chairman in the Rajya Sabha. ध्यान रहे कि केवल स्पीकर के द्वारा कह दिया जाए कि उसी में केवल स्पीकर के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही कंसिडर किया जाता है मोशन ऑफ थैंक्स पर कौन कौन से सुधार हो, कौन कौन से विचार लाए जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि चेयरमैन जो राज्यसभा, चूँकि दोनों सेशन पे रखा जाता है, दोनों मतलब संसद के दोनों सदनों पर रखा जाता है मोशन ऑफ थैंक्स को, उस पर चर्चा की जाती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट ऑन दिस मोशन ऑफ थैंक्स, और संसद के दोनों सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य जो होते हैं, इस पर वोट करते हैं। दिस मोशन मस्ट बी पास्ड इन द बोथ द हाउसेस सेपरेटली। ए फेलर टू गेट द मोशन ऑफ थैंक्स पास्ड अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर इस पर सरकार फेल हो गई
तो सरकार गिर जाएगी, collapse द गवर्नमेंट। दिस इज वाई द मोशन ऑफ थैंक्स इज डीम्ड, मतलब बराबर है, तुल्य है किसके, अविश्वास प्रस्ताव के। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 368, 368 के अनुसार, आर्टिकल 368 के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ रीजनलनेस एंड वेलफेयर स्टेट, रीजनेबलनेस जो है एक तार्किक पूर्ण जो तर्क होता है, मतलब रीजनेबलनेस आप जो जहाँ सुनते होंगे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वेलफेयर स्टेट, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ अंग हैं, हिस्से हैं। नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन ओनली। इज इट राइट और नॉट? आई थिंक यू गॉट द आंसर, बट इज सिंपल क्वेश्चन, यू इजिली एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ, देखिए पहला तो काटिए 1, दूसरा काटिए 3, 3, आंसर इज 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, 2 इज ओनली, ए इज द आंसर। बेसिक स्ट्रक्चर को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, ये भी जानते हैं, और नेशनल इमरजेंसी को जानते हैं। आपको पता है कि आर्म रिवेलियन हो जाए तो भी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन प्लेसेस रुमनेदाई, सांची, सारनाथ एंड सासाराम? दे आर द मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोक, दे आर द कैपिटल ऑफ महाजनपद, दे आर द सम ऑफ द अर्लीस्ट साइट्स even before the Indus Valley civilization was discovered, they contain Ashokan pillar inscription. रुमनीदई, सांची, सारनाथ और सासाराम, क्या है इसमें समानता? चलिए इसका सही जवाब है दे कंटेन अशोकन पिल्लर inscription. Ashok was the first ruler who inscribed his message to his subjects. अपने प्रजाओं को मैसेज देने के लिए उन्होंने पहली बार स्टोन पर लिखवाया ऑफिशियल रूप से, नेचुरल रॉक एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स पे। ही यूज द इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू द धर्म, धर्म का क्या अर्थ है, धर्म का क्या अर्थ है उनके अनुसार, उन्होंने इस बातों को समझाया। दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड द एल्डर, जेनोसिटी टुवर्ड्स द ब्राह्मण एंड दोज हु रेन्यूंस वर्ल्डली लाइफ, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली एंड रिस्पेक्ट द फॉर अदर रिलीजन एंड ट्रेडिशन एंड अदर सो ऑन। इन द एंशिएंट इंडिया, कुठागरशाला, कुठागरशाला क्या है? एक प्लेस है जहाँ बच्चों को ब्राह्मण के फैमिली द्वारा शिक्षा दिया जाता था। ए प्लेस वेयर द हेड ऑफ द ट्राइब रेसिडेड, और ए प्लेस वेयर द डिबेट बिटवीन द फिलोसफर टुक प्लेस। आई थिंक दिस इज द सिंपल क्वेश्चन वंस अगेन। चलिए इसका सही जवाब है सी इज द राइट आंसर, एक ऐसा जगह जहाँ पर फिलोसफर के बीच डिबेट होता था। कुटागरशाला literally means a hut with a point roof, or in groves where traveling mendicants halted. Debates between the philosopher took place here. If a philosopher succeed in the convincing of his own rivals, the followers of the latter also become his disciples. Consider the following statement regarding the opinions voiced by different leaders on the question of the Indian support to British war efforts during the Second World War. Gandhi advocated an unconditional support to the all allied powers. Nehru ji advocated that it was the ideal time to launch the civil disobedience movement. Which of the correct statement? चलिए इसका सही जवाब आपको खोजना है, और इसका सही जवाब है एक ही केवल सही है। महात्मा गांधी ने बिना कोई शर्त के साथ अलाइड पावर को सहयोग करने के लिए बात कही थी वर्ल्ड वार 2 के दौरान, और नेहरू जी चुप थे, इसमें उसमें उनका कुछ मत नहीं था। वो बोले थे अभी हम लोग को चुप रहना है, हम लोग को अभी कुछ नहीं करना है। डिफरेंट ओपिनियन आपको पता होगा, अलग अलग वॉइस उठ रहे थे अबाउट द सहयोग करना है कि नहीं करना है ब्रिटिश को ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 के दौरान। गांधी जी ने कहा सिंपैथी रखो यार ब्रिटेन के साथ इन दिस वार बिकॉज ऑफ हिज टोटल डिसलाइक ऑफ द, आपको पता होगा उस समय हिटलर अपने चरम पे था, फांसीवादी नीतियाँ, उसकी आइडियोलॉजी उनको बिल्कुल पसंद नहीं था महात्मा गांधी को, तो उन्होंने सोचा कि अलाइड पावर को बिना कोई शर्त का सहयोग करना जरूरी है। ही सेड दैट ही वाज नॉट विलिंग टू एम्बारास द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उदास हो जाए, नाराज़ हो जाए। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस और कुछ और भी सोशलिस्ट लीडर थे, जिसमें कि आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, उनका कोई सिंपैथी नहीं था
किसी भी साइड, बल्कि वो सोचते थे कि एक बहुत ही बेहतरीन समय है कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर दें ताकि फ़ायदा उठाया जा सके इस स्थिति का, सिचुएशन का, और स्नैच द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटेन, और हम लोग ब्रिटेन से आज़ादी छीन के ले लें। जबकि नेहरू जी का कहना था नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ, या तो ना तो उन्होंने गांधी जी के विचार को स्वीकारा और ना ही सोशलिस्ट के विचारों को। ही एडवोकेट नो इंडियन पार्टिसिपेशन टिल इंडिया इटसेल्फ वाज फ्री, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता, खुद स्वतंत्र नहीं रहता, हम लोग किसी को सहयोग नहीं करेंगे। हाउएवर एट द सेम टाइम, और उसी समय, नो एडवांटेज वाज टू बी टेकन ऑफ ब्रिटेन्स डिफिकल्टी बाय स्टार्टिंग एन इमीडिएट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और अचानक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अगले प्रश्न पर विचार करते हुए बताइए, रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर के बारे में, एक्सपेंशन ऑफ वायसरायस एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच वुड हैव ए मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, क्या इसके बाद भारत में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा उसमें मेजोरिटी इंडियन का होगा। मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सोलली इन द इंडियन हैंड्स, संविधान बनाने का पूरा दायित्व जो होगा वो भारत के हाथों में होगा। और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, जो भविष्य का संविधान होगा, टू बी अडोप्टेड द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज़, वो माइनॉरिटीज़ के मतलब उनके विचारों को जानकर होगा, उनके विचारों को साथ होगा, उन्हें दरकिनार नहीं कर दिया जाएगा। क्या ये सही था अगस्त वो ऑफर में? चलिए, आई थिंक इसका जवाब आपको सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब है 1 और 3, इसमें 2 गलत है। बी इज द राइट आंसर, 1 और 3। अगस्त ऑफर 1940 में लाया गया था, प्रपोज किया गया था पूरी आज़ादी के नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेटस का। एक्सपेंशन ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये बात तो बिल्कुल सही है, जिसमें मेजोरिटी इंडियंस की होगी। सेटिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसके बाद एक नया संविधान का मतलब सभा गठन होगा आफ्टर द वार, वेयर मेनली इंडियंस वुड डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंसेप्शन subject to fulfillment of the obligation of the government regarding defense, minority rights, treaties with states, all India service, no future constitution to be adopted, ऐसा कोई भी संविधान स्वीकार नहीं किया जाएगा जो कि माइनॉरिटीज़ के कंसेंट्स के खिलाफ हो। दिल्ली चलो मूवमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री किससे जुड़ा हुआ है? क्या ये भारत छोड़ो आंदोलन से, क्या ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से, क्या ये असहयोग आंदोलन से, या किसी से नहीं? 5वां सवाल का आखिरी जवाब आपके स्क्रीन पर बताइए। देखिए, दिल्ली चलो आंदोलन ये एक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा लोगों से दिल्ली जाने की आग्रह की जा रही थी। तो बी इज़ द राइट आंसर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज ए रिजल्टेंट ऑफ द अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर असफल रहा। उसके बाद फिर हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह पर उतर गए। महात्मा गांधी इनिशिएटेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह टू अफर्म द राइट टू फ्री स्पीच। उन्होंने कहा कि राइट टू फ्री स्पीच जो है ना, वो एक मूलभूत अधिकार है। डिमांड ऑफ द सत्याग्रही वुड बी द फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वार। हम वार के खिलाफ बोलेंगे, ये हमें बोलने के लिए मिलना चाहिए आज़ादी। एन एंटी वार डिक्लेरेशन, और हम एंटी वार के लिए लड़ेंगे। इफ़ द गवर्नमेंट डिड नॉट अरेस्ट द सत्याग्रही, अगर वो सत्याग्रही को गिरफ्तार नहीं करते हैं, ही और सी वुड नॉट ओनली रिपीट इट बट मूव इनटू द विलेजेस, वो गांव में भी घूमेंगे। एंड स्टार्ट ए मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, और दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। इसलिए इसको कहा गया दिल्ली चलो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। आफ्टर लिबरलाइजेशन जो ग्लोबल इंडिया हैज़ अंडरगॉन स्ट्रक्चर चेंज इन इकोनॉमिक इन दिस कंटेक्स्ट, स्ट्रक्चर चेंज का क्या मतलब है? ये संरचनात्मक बदलाव जो हुआ उसका क्या मतलब है? क्या इसमें जनसंख्या में बहुत करेक्टरिस्टिक परिवर्तन आ गया, या फिर चेंज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक टू जीडीपी, और अलग अलग जो सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उसका योगदान जो है जीडीपी में वो बदल गया, या फिर एक्सप्लॉयटेशन पैटर्न ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम लोग जो नेचुरल रिसोर्स का मतलब एक तरह से दोहन कर रहे थे, उसके एक्सप्लॉयटेशन के नेचर में बदलाव आ गया, या फिर चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चर में बहुत भयंकर बदलावट आ गई। ऐसा कुछ है क्या? चलिए, इसका सही जवाब तो बहुत आसान है। आई थिंक बी इज़ द राइट आंसर। कंट्रीब्यूशन जो है बदल गया, आपको पता होगा जीडीपी में। स्ट्रक्चरल चेंज रिप्रेजेंट द फंडामेंटल चेंजेस दैट ऑकरिंग इन द बेसिक फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक ओवर ए लॉन्ग पीरियड। स्ट्रक्चर चेंज वो होते हैं जिससे क्या होता है कि बहुत ही गंभीर रूप से चेंज आता है,
बेसिक फीचर इकोनॉमिक के अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर में। स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमिक मीन्स द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंडस्ट्रियल पैटर्न, कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, सेविंग, जीडीपी रेशियो। ड्यू टू द एलपीजी रिफॉर्म्स लार्जली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमिक हैज ट्रांसफॉर्म इनटू द सर्विस बेस्ड इकोनॉमिक। एलपीजी के पहले हम लोग पूरी तरह से कृषि अर्थव्यवस्था में डिपेंडेंट थे, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग अपना जीडीपी में योगदान देते थे। लेकिन जैसे ही 1991 का शुरुआत हुआ, एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसे आया ना, उससे क्या हुआ कि ये सर्विस बेस्ड इकोनॉमिक बन गए हम लोग। अचानक हम लोग सर्विस बेस्ड इकोनॉमिक की तरफ कूद गए। आज जानते हैं कि आप लगभग 54% से 60% के आसपास जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें भी आज भी रोज़गार मिलने वाले जो काम करने वाले लोग हैं, लगभग 70 से 60% लोग इसमें काम करते हैं, सोचिए। लेकिन जीडीपी में योगदान हम लोग कृषि का कितना है, तो अभी लगभग 14 से 13% के आसपास। एक गंभीर स्थिति है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में अगला प्रश्न है, क्या होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? आप पहले समझ जाइए, उसके बाद आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाइएगा। क्या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण किस किस चीज़ को प्रभावित होता है? इससे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन प्रभावित होता है, डिस्करेज हो जाता है क्या? क्या फॉरेन जो सहायक है इन्वेस्टर लोग वो हतोत्साहित होते हैं क्या? इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स एज कम्पेयर टू इट्स रॉ मटेरियल, क्या हम लोग फिनिश गुड का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मंगवाने लगते हैं ना कि रॉ मटेरियल की तुलना में? तो इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा। इसका सही जवाब आई थिंक यू गॉट द आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल बा, तो बताइए का हो ये कर आंसर। चलिए, इसका सही जवाब आपको पता, ए और ए इज़ द राइट आंसर, बिकॉज यू नो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी जो हो तो फिनिश गुड इज़ लोअर एज कम्पेयर टू द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द रॉ मटेरियल्स दैट आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द सच फिनिश गुड्स। कच्चे माल में आप ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तुलनात्मक रूप से फिनिश गुड्स पर। यही है इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर। जैसे कि आप अगर टैरिफ लगा रहे हैं सपोज टायर पे 10% और उसी टायर के नेचुरल रबर पर आप लगा रहे हैं 20%, तो हो गया ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। व्हेन द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द रॉ मटेरियल इज हाई, जब कच्चे माल पर आप इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगाते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है पता है? इसका प्रभाव होता है डिफ़िकल्ट हो जाएगा कंज्यूमर जितने भी निवेशक हैं उनके लिए। गुड्स डोमेस्टिकली एंड कम्पिटिटिव प्राइस, हमारा जो सामान है वो बहुत महंगा हो जाएगा और हम लोग किसी विश्व के बाज़ार में अपना सामान बेचने के लायक नहीं रहेंगे। सेवरल इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। अगर आप कच्चे माल पे ही ज़्यादा से ज़्यादा आयात शुल्क लगा देंगे तो हम लोग तो फिनिश गुड्स बनाने से रहें, लाभ तो होगा नहीं, हतोत्साहित हो जाएंगे। और विदेशी कंपनियां भी यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि उनको लगेगा कि हम यहाँ पर आएंगे तो हमारा सामान जो है वो महंगा है तो हम विदेश में बेच नहीं पाएंगे। हाई टैक्स ऑन द रॉ मटेरियल्स कंपेल्स देम टू रेज प्राइस, और इसका प्रभाव कंज्यूमर पे पड़ जाएगा और कंज्यूमर बेचा भी उससे हतोत्साहित हो जाएंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, हो सकता है इन्फ्लेशन आ जाए, ये भी प्रभाव हो सकता है इम्पोर्टेड ड्यूटी के कारण, मतलब आई मीन जो अपोजिट ड्यूटी है स्ट्रक्चर। इससे एक बात और भी जानिए कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज यूज ऑफ द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर डिस्करेज द डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन तो होगा नहीं। ऑन द अदर हैंड फॉरेन फिनिश गुड्स विल बी कमिंग एट अ रिड्यूस प्राइस, और विदेशी सामान वस्तु जो होगा वो हमारे यहाँ पर सस्ते दाम में आ जाएगा, जिसके कारण हम लोग हो जाएंगे इम्पोर्टर वाले कंट्री, हम लोग खरीदने वाले बन जाएंगे, बेचने वाले कम, और हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा, हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे। संक्षेप में तो कहें कि मैन्युफैक्चर गुड बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बिकम्स अनकम्पिटिटिव अगेंस्ट द इंपोर्टेड फिनिश गुड्स। इन सच केस इवन फॉरेन इन्वेस्टर वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप अ फर्म फॉर द प्रोडक्शन इन द कंट्री। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके देश में विदेशी कंपनियां नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट CAD। अभी मैंने CAD का चर्चा किया था थोड़ा सा। करंट अकाउंट मेजर द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट इनटू द आउट ऑफ द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री, इन्वेस्टमेंट इनटू द आउट ऑफ द कंट्री। क्या ये करंट अकाउंट डेफिसिट में आता है? करंट अकाउंट में आता है कि नहीं, पहले ये बताइए। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है हेल्प ए डेप्टर नेशन इन द शॉर्ट टर्म। करंट अकाउंट डेफिसिट जिसका होगा उससे क्या उसको मदद मिलने में छोटे समय के लिए मदद मिलना आसान होता है।
हाई सॉफ्टवेयर रिसिप्ट एंड प्राइवेट ट्रांसफर कैन लोअर करेंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, चलिए इसका सही जवाब तो बहुत आसान है, लेकिन आपको सोचना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि एक एक और एक खत्म करिए, 2 और 3 में सही चल जाइए, क्योंकि एक में आपको पता होगा मैंने क्यों गलत किया है, क्योंकि आपने लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इनटू द आउट ऑफ द कंट्री, हाउ इट वुड बी पॉसिबल। 2 और 3 दे रहे। करंट अकाउंट डेफिसिट और CAD कैड इज द शॉर्टफॉल बिटवीन द मनी फ्लोइंग इनटू द एक्सपोर्ट एंड मनी फ्लोइंग आउट ऑन द इम्पोर्ट। आप सामान खरीदने में कितना खर्च करते हैं और बेचने में कितना कमा लेते हैं, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस मेजर का मतलब होता है गैप बिटवीन द मनी रिसीव्ड इनटू and sent out of the country on the trade of goods and services, and also the transfer of money from domestically owned factors of production abroad. The current account constitute, इसमें क्या क्या आता है, एक तो नेट इनकम आएगा, इंटरेस्ट आएगा, डिविडेंड आएगा, ट्रांसफ़र सच जैसे कि फॉरेन सहायता मिल गया, आपका बहुत सा विदेशी प्रवेशन आता है जिसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं, डोनेशन मिल गया। एक कंट्री राइजिंग CAD शोज दैट अगर किसी का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है इट बिकम अनकम्पिटिटिव, वो देश अनकम्पिटिटिव हो चुका है, एंड इन्वेस्टर आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट देयर। और कोई देश भी नहीं चाहेगा कि ऐसे देश में प्रवेश करे जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है। जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है सरकार पर बोरोइंग, सरकार ने बोरोइंग बहुत ज़्यादा ले लिया है, उधार ज़्यादा ले लिया है, सरकार कभी भी दिवालिया होती है, ऐसे होता नहीं है, लेकिन चूँकि ग्रीस में तो हुआ ही है, तो भारत या किसी और देश के लिए भी सही है, दे में विड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट। और ऐसा क्या होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जब बढ़ता है तो विदेशी निवेशक या वहाँ के जो वर्तमान में जो विदेश के लोग निवेश किए हैं भारत में, वो पैसा वापस निकालने लगते हैं और वहाँ से ले जाके अपने विदेशों में पैसा लगाते हैं, जहाँ पर करंट अकाउंट मतलब उसको सरकार की संभावना मौजूद रहती है, इसका भी प्रभाव होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक डिपेंडिंग अपॉन वाई इट इज़ रनिंग ए डेफिसिट। देखिए, फॉरेन कैपिटल इज सीन टू हैव बीन यूज टू फिनांस इन्वेस्टमेंट इन मैनी इकोनॉमीज। करंट अकाउंट डेफिसिट में हेल्प ए डेप्टर नेशन इन शॉर्ट टर्म। देखिए, छोटे समय के लिए जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट है, कोई देश को उसको मदद करने तो हम कर देंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन लंबा समय के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो इन्वेस्टर ये सोचेगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट इसका ज़्यादा है और बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो ना तो मूलधन चुकाएगा और ना उस पर इंटरेस्ट चुका पाएगा, और हो सकता है वो फेल भी हो जाए, दिवालिया हो जाए, सो लंबे समय में तो आपको रिटर्न भी नहीं मिल पाएगा। Therefore, there were numbers of factors which lead to the lowering of current account deficit। ऐसे बहुत से कारक है जिस पर सरकार हमेशा काम करती रहती है जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो। आप बहुत सारे तरकीब लगा सकते हैं। एक तो सबसे पहला अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा कीजिए, FDI को फ्लो कराइए। दूसरा बात है इम्पोर्ट सब्सिट्यूट, आप इम्पोर्ट को सब्सिट्यूट कीजिए। हो सकता है कुछ आपको कोटा निर्धारित करना हो, चुंगी लगानी हो, कुछ प्रोटेक्शनिज्म नीति अपनानी हो, आप अपना सकते हैं। और एक तरीका है कि सॉफ्टवेयर रिसिप्ट हैव गॉन अप, अगर बढ़ेगा सॉफ्टवेयर आपका रिसिप्ट बढ़ेगा तो स्वाभाविक है प्राइवेट ट्रांसफ़र आपके घर में घुसेगा तो आपको फ़ायदा होगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट घटेगा। आप क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, क्रूड ऑयल में वॉलेटिलिटी होती रहती है, करंट अकाउंट डेफिसिट उससे चौपट होते रहता है। आपका अगर फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका में भी प्रभावित नहीं हो, और इससे क्या हो, विदेशी कंपनियाँ भी आपको यहाँ सोचेगी आने। ओके, अगला क्वेश्चन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसके किसके कारण आ सकता है? फैक्टर कैन लीड टू द डिमांड पुल्ड। मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होता है? जब कंज्यूमर बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगता है, जब मनी सप्लाई बढ़ जाता है, जब प्राइस बहुत उछल जाता है, बहुत ऊपर चल जाता है, या फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशन होता है। सोचिए सोचिए। देखिए, इसमें एक चीज़ सोचना होगा आपको। 3 स्टेटमेंट आप अगर समझ लिए, 3 को काटते जाइए। 3 कहाँ है? देखिए आंसर मिल गया 1 2 4, क्योंकि इसमें आपको मांग जनित मांगा है, कोस्ट जनित नहीं। तो जब प्राइस जब बढ़ता है तो वो कोस्ट जनित होता है, मांग जनित नहीं होता है। इसलिए आपका आंसर तो मिल चुका है 1 3 4, I mean 1 2 4 जो मैंने बताया था ऑप्शन। व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमिक स्ट्रांगली ओवर आउटवे द एग्रीगेट सप्लाई। होता क्या है कि ये एक तरह से एक ऐसी स्थिति है जिसमें डिमांड और सप्लाई के बीच मिसमैच हो जाता है, तो प्राइस तो गो अप चलेगा ही, क्योंकि आपको पता होगा प्याज का दाम, तेल का दाम, आप रोज़ इस तरह से गुजरते हैं। ये सब होता क्या है? ये मांग जनित है। वस्तुओं का स्टॉक है उसकी कमी हो गई है। इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब डिमांड पुल इन्फ्लेशन एज अ रिजल्ट ऑफ टू मेनी डॉलर्स चेजिंग टू फ्यू गुड्स। जब ढेर सारा पैसा
मतलब बहुत कम वस्तुओं को चेंज करने लगे, उसका पीछा करने लगे, तो ये मांग जनित मुद्रास्फीति पैदा कर देता है। इफ़ ए गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स, जब सरकार टैक्स घटाती है, हाउस होल्ड के पास बहुत सारा पैसा बच जाता है, डिस्पोजेबल इनकम जिसको बोलते हैं। जब आपके पर्सनल इनकम से आपके टैक्स को, आपके नन टैक्स को हटा लिया जाता है, तो आपके पास जो कुछ बचता है वो डिस्पोजेबल इनकम होता है। और सरकार अगर आपके टैक्स को हटा दे, कॉर्पोरेट टैक्स घट जाए, आपका इनकम टैक्स घट जाए, और बहुत सारी आप सरकार को उसको सुविधा देने लगे, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया, आपका पॉकेट बड़ा हो गया, आपका पास पैसा ज़्यादा हो गया। आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर ज़्यादा खर्च करेगा, और ज़्यादा खर्च करेगा, इसका सीधा मतलब है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और फिर इसके मतलब है इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन उत्पन्न हो जाएगा। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब उत्पन्न होता है जब प्राइस किसी चीज़ का बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉल मनी रेट। ये कॉल मनी रेट पर विचार करते हुए बताइए। बैंक रिसोर्ट द कॉल मनी लोन्स टू फिल द एसेट लायबिलिटी मिसमैच, कंप्लाई विद द SLR और CLR रिक्वायरमेंट्स एंड टू मीट द सडन डिमांड्स ऑफ फंड्स। बैंक इस कॉल मनी का इस्तेमाल तब करता है जब उसको अचानक पैसे की ज़रूरत हो जाती है, अचानक पैसे का डिमांड हो जाता है, SLR और CLR का मतलब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़े तब। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लिक्विडिटी अफेक्ट द कॉल मनी रेट, क्या डिमांड और सप्लाई कॉल मनी रेट को प्रभावित करता है। और तीसरा है कि केवल RBI एंड बैंक्स आर द पार्टिसिपेंट ऑफ द कॉल मनी मार्केट, क्या ये सही है। सोचिए, कॉल मनी रेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने इसके पहले कई वीडियोस में इस पर चर्चा भी की है। चलिए, इसका सही जवाब आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि 3 को तो पहले छाटिए आप, और आपको पता होगा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 डेफिनेटली विल बी राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, 1 and 2। कॉल मनी rate is the rate at which short term funds are borrowed and lent in the money market. Duration of the call money generally 1 दिन का होता है। Bank resort to these types of loans to fill the asset liability mismatch। कभी कभी क्या होता है, बैंकों को asset liability mismatch का सामना करना पड़ता है, और उस वक्त बैंकों को SLR या CLR का मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अचानक हो सकता है कि मीट द सडन डिमांड ऑफ द फंड्स की किसी की ज़रूरत हो गई, तो RBI, बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स और भी बहुत कोई हैं जो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मतलब ये पार्टिसिपेंट ऑफ द कॉल मनी मार्केट, ये कॉल मनी मार्केट को में खेलते रहते हैं। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लिक्विडिटी, स्वाभाविक है, आपको पता होगा मांग और सप्लाई वो बस बाज़ार में जो है वो लिक्विडिटी को प्रभावित करता है, जिससे कॉल मनी रेट भी प्रभावित हो जाता है। एक टाइट लिक्विडिटी कंडीशन, जब लिक्विडिटी बहुत शॉक हो, टाइट हो, इससे क्या हुआ, कॉल मनी रेट तो बढ़ जाएगा, और जब मनी बाजार में फैला हुआ है तो कॉल मनी रेट तो आसान से होगा ना, कम होगा ना। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोगैस। बायोगैस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस इज फॉर्म बाय द anaerobic digestion of organic material. It is normally burned विदाउट स्मोक एंड हाई हीटिंग कैपेसिटी। क्या ये तीनों कथन बायोगैस के बारे में सही है कि बायोगैस जो है मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, ये बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑर्गेनिक मटेरियल के जलने से उत्पन्न होता है। क्या ये बर्न करता है बिना कोई धुआं निकाले, और इसका हीट कैपेसिटी हालांकि थोड़ा सा हाई होता है, ऐसा क्या सही लगता है आपको। सोचिए, आपके ऑप्शन ये रहे और आपके सही जवाब आने में देरी लग रहे हैं। बायोगैस It's a right answer is D. 1, 2 and 3 is absolutely right answer. And welcome back all of you. इसके लिए सही जवाब देने के लिए। बायोगैस इज जनरेटेड ड्यूरिंग द anaerobic डाइजेशन, मतलब सीधा सीधा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, वो भी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, तो इससे क्या होता है, बायोगैस निकलता है। बायोगैस इज मोस्टली, जैसे इसमें मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और छोटी मोटी मात्रा में स्मॉल और वेपर हो सकता है, अदर गैसेस भी हो सकते हैं, लेकिन उस पर हम विचार नहीं करते हैं। हम लोग जनरली कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन पर दोस्त सोचते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस कैन बी कन्वर्टेड और कैन बी रिमूव्ड बाय लिविंग ओनली द मेथेन। आप चाहो तो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत से जो गैसेस है छोटी मात्रा में, उसको आप आराम से बाहर कर सकते हैं, और आपके पास बच जाएगा केवल मेथेन। और मेथेन तो पता है आपको भविष्य का ईंधन है, और आने वाले समय में माफ़ की जाता हूँ, मेथेन अभी भी इस्तेमाल होता है। मेथेन इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा घटक होता है मेथेन, प्राइमरी कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन,
फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइफ फॉर्म्स, ये लाइफ दुनिया उसके बारे में आप बताइए। इफैट्रिक के बारे में पूछा गया, प्लांट्स विच डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फंगी दैट आर अटैच टू द रूट्स ऑफ द वास्कुलर प्लांट। और टेरिस्टेरियल मतलब होता है ऐसे प्लांट जो कि लैंड और क्लाइंबर्स होते हैं, और माइक्रो हेट्रोट्रॉपिक ऐसे प्लांट जो कि दूसरे प्लांट पे जीवित रहते हैं। चलिए बताइए, ये लाइफ जिंदगी का हिस्सा है भैया। इफाइटिक ये हार्ड प्रश्न है, इसका सही जवाब है केवल एक, केवल 2 सही है, बाकी सारा मैच क्लिक कर दिया गया है। देखिए इफिफाइटिक वैसे प्लांट होते हैं जो कि ग्रोइंग करते हैं अदर प्लांट्स इंक्लूडिंग दोज ग्रोइंग ऑन रॉक बोल्डर्स एंड ऑफन टर्म लिथोफाइट, इसको लिथोफाइट भी बोला जाता है, पत्थरों पे जो उगते हैं। टेरिस्टेरियल जो होता है ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रोइंग करते हैं लैंड और क्लाइंबर्स की तरह होते हैं, ये लताएं जैसे होती है। एक होता है माइक्रो हिट्रोट्रॉफिक प्लांट विच डिराइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम माइक्रोराजियल फंगी, जिनको माइक्रोराजियल फंगी से अपना भोजन मिलता है। अटैच टू द रूट्स ऑफ द वास्कुलर प्लांट, और ये वास्कुलर प्लांट का में जुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द टर्म ऑफ सेल्फ सस्टेंस एंड इंडोरेंसेस विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे बेहतरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशियन एंड माउंटेन्स। थिंक अबाउट इट। सबसे सेल्फ सस्टेंस है, इंडोरेंसेस है, कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ओशियन इज द राइट आंसर। ओशियन इज ए सेल्फ सस्टेंट इकोसिस्टम, स्वयं अपने आप को सस्टेन कर लेता है इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम है ओशियन, और कवर करता है लगभग 2/3 दुनिया इसमें बसी हुई है। सोच लीजिए, भारत बोलता है पूरा पृथ्वी का 2/3, आपको पता होगा 66% से ज़्यादा अर्थ पर उसी पर निर्भर है। इट इज़ द ओल्डेस्ट इकोसिस्टम, दुनिया का सबसे पुराना इकोसिस्टम पूछा जाए तो आप ओशियन बोलिए। इट इज़ अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज़, आपको पता होगा प्राकृतिक आपदाएँ तो आती रहती है, सूखा, भूकंप है, सुनामी है। इट इज़ हाईली डाइवर्स, ये फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होकर सी ग्रास से होते हुए वेल तक जाता है। द प्रोडक्टिव इकोसिस्टम एंड कंटेन्स अर्लीस्ट एवोल्यूशनरी लाइफ फॉर्म्स। द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हैज़ ऑल्सो बीन मोर स्टेबल दैन इट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। आपको पता होगा ज़िंदगी की शुरुआत समुद्र से ही हुई है, और इसकी में कोई डाउट नहीं है कि समुद्र जो है वो विविधताओं का घर है। जो यहाँ विविधता ज़्यादा होती है वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट एंड पोलर एरियाज। आपको पता होगा ट्रॉपिक जो क्षेत्र है वहाँ पर स्पीसीज प्रजातियों की ज़्यादा भरमार है देन टेम्परेट और पोलर की तुलना में। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, क्या कारण है उसके लिए? ट्रॉपिक अकाउंट फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देन टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिक क्षेत्र में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा है टेम्परेट क्षेत्र की तुलना में। इसके संभावित कारण, पहला, अनलाइक द टेम्परेट रीजन विच वेयर सब्जेक्टेड टू फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है ना, वो लगभग लाखों करोड़ों ईयर से अप्रभावित रहा है। क्या ये सही है? ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर लेस सीजनेबल, इसमें ज़्यादा ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट प्रेडिक्टेबल अनलाइक द टेम्परेट रीजन। टेम्परेट क्षेत्र की विपरीत ये जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है उसमें एक तो सीजनेबल ज़्यादा नहीं होता है, लेस सीजन होता है, मोर कॉन्स्टेंट होता है, आसानी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और तीसरा है देयर इज ए मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स में सोलर एनर्जी ज़्यादा मिलता है। कथन आपके इस प्रकार रहे हैं और ऑप्शन आपके सही हो चुकते हैं, सोचिए इस पर। और ये लॉजिकल प्रश्न है, आई थिंक इसका आंसर बहुत ही आसान है। चलिए इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने भी डी ही दिया होगा मेरे ख्याल से। 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर द देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? क्या है ऐसी विविधता इस ट्रॉपिक के पास जो टेम्परेट और पोलर के पास नहीं है? इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड द वेरियस हाइपोथेसिस। बहुत सारी कल्पनाएं की गई हैं इस पर, कुछ हम लोग जान लेते हैं। स्पेसिसिएशन, ये जो प्रजातीकरण विविधता, इज जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम,
unlike the temperate region subjected to the frequent glaciation in the past, tropical latitude have remained relatively undisturbed for the millions of years and thus had a long evolutionary times for species of for diversification. इन स्पीसीज़ों को एक लंबा वक्त मिल गया अपने डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, अपनी विविधताओं को बढ़ाने के लिए, जबकि ये टेम्परेट में नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेट में ग्लेशिएशन हुआ, हिम युग आया, बहुत सारी युग आई, ये ट्रॉपिक में बहुत कम बदलाव हुआ. ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक द टेम्परेट वंस आर लेस सीजनेबल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट, प्रोडक्टेबल. सच कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रोमोट नीके स्पेशलाइजेशन. ऐसी वातावरण जहाँ पर आपको पता चल जाए कि वातावरण कैसा रहने वाला है, ऋतु क्या होगा, आसानी से इसको प्रोडक्ट किया सकता है, तो वहाँ के जो नीके होते हैं वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं, अपने आप को बहुत बेहतरीन तरह से प्रदर्शित कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, टू लीड ए ग्रेटर एंड स्पेसिफिक डाइवर्सिटी. देयर इज ए मोर सोलर एनर्जी. ये तो सिंपल सी बात है, ट्रॉपिक में आपको पता होगा सूरज का प्रकाश सालों भर लगातार सीधे पड़ता है, जिसके कारण उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है और इससे क्या होता है, ग्रेटर डाइवर्सिटी पैदा होता है. अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा. इन द लास्ट 5000 ईयर्स, पिछले 500 साल के दरमियान में ह्यूमन एक्टिविटी इज नन टू हैव फोर्स मोर देन 800 स्पीसीज टू एक्सटिंक्ट. मनुष्यों ने लगभग 800 से ज़्यादा प्रजातियों को ख़त्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. विच ऑफ द स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट. इसमें कौन कौन सा लुप्त हो चुका है, उसके कारण, मनुष्य के कारण, हम लोगों के कारण. सेटलर सी काउ, ये क्वागागा, ये कैस्पियन टाइगर, इससे स्लॉथ बियर. चलिए थिंकिंग कीजिए इस पर. ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आपको स्पीसीज के बारे में पता है कि नहीं, आपको जानना होगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू लव दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स and subscribe my channel. Thanks a lot for watching this video. Goodbye.